A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. I'm audible to all of you. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So today we are taking up a very important topic again. That is a marker biology. Uh, it's a very important subject in the field of genetics or the genomics, where we need to learn some important molecular markers which are very regularly used in the research to find out the variations and the biodiversity of the particular organism with respect to genetic sequences. So, what is actually a marker that we need to understand first? And that part we'll cover first, and then we'll see different types of markers, and we'll take the practical approach of it, how we can use it in a research in a practical way. So first molecular marker what we generally used to learn is the RFLP marker, okay, and then we used to learn RAPD markers, and then PCR based markers. These are the general markers what we used to learn in marker biology in general. Along with that, there are some other markers are also there, like EST markers are there that we have already seen. EST markers, also known as eDNA marker. But today we'll be focusing on these two markers, RFLP and RAPD, and if time permits, we'll go for the restriction and digestion based analysis also. These are our today's topic, what we will be covering. So everybody knows what is the RFLP means, but still I will explain it in detail about it. It's the restriction fragment length polymorphism. Okay. So restriction fragment length polymorphism. Now what is this and why we are learning this? It is very important to understand. So let us take an example. Consider a situation where you are working with the bacteria. Okay, you are working with the bacteria, and in that bacteria you wanted to find out uh, some kind of a variations. Okay, some kind of a variations, and based on this variation you can segregate them. Okay, segregate or simply separate them. So if we wanted to separate some bacteria from each other based on some of the criteria, then you can use this RFLP technology because it's a marker. Okay, it's a marker technology. It helps you to find out that gene or that bacteria is present or not. Now, whenever I'm saying separation, so question comes why we are separating? Why we are separating any bacteria? Okay, any bacteria. So this may be bacteria, this may be plant, okay, this may be any animal also. Okay. Now, uh, if we take one example of tulsi, you must have seen a tulsi in everybody's home. But if you see tulsi carefully, you will find the variations are available, right? Variations are available. You will see that there is a dark tulsi, there is a green tulsi, you know, jungly tulsi is also there, wild tulsi is also there. So you'll find that some variations are there in a tulsi. Now these type of variations are very easy to search by naked eye polymorphism. Means you can very easily check them through your eyes and you can say, okay, these are the different tulsis. Okay, but sometimes what happens, will not be able to distinguish them, right? Will not be able to distinguish them, and if you are not been able to distinguish them, then it becomes tough for us to segregate or to classify, right? So for that means in that situation, what we'll do, you will go to the
two different markers. One is genetic and another is proteomic. Okay, so out of these two markers, genetic marker is more stable, actually more stable, and uh, what you can say, repetitive. Okay, repetitive. This is very important. Repetitive means it will give you the repetition of the presence. If you test it for 1 or 2 times, 3 times, 4 times, like that, and hence genetic markers are very important. And one of the genetic marker what we are learning is the RFLP. Now, what is exactly RFLP? That we will learn first. So to learn this, we'll go to the uh, paint section. Now we'll understand what is happening. Consider that you are having a two plants. Plant number one, plant number one, and then you have a plant number two. So there are two plants are available with us, and for the first plant you have a genome of it. These two plants are of same type. Okay, these two plants are of same type. For example, I am considering Tulsi. Plant number one Tulsi and plant number two Tulsi. Now, I want to distinguish them, that whether they are same or whether they are different. Okay, so how I can do that at a genetic level? Okay, how I can classify them? Okay, they are whether they are same or different. Okay, so I need to confirm them that the plant number one is same as plant number two or not. Okay, this I have to confirm. Now, what question comes? Why? Question comes why. Now I am taking only two examples. Generally in this kind of studies we consider more than 50 plants. Okay, so I am classifying more than 50 plants in a one group or other groups. Okay, likewise I can classify them and so that I can select them. ठीक है, जो हमने पढ़ा था पिछले बार, अगर आपके पास 50 प्लांट है, वो 50 के 50 प्लांट हो सकता है कि एक जैसे हो सकता है 50 के 50 प्लांट पूरे अलग हो सकते हैं, या उनमें से कुछ प्लांट सेम हो और कुछ प्लांट्स अलग हो सकते हैं, पर हमको नहीं पता कि एग्जैक्टली वो सेम है या डिफरेंट है. So to do that, you can go for the RFLP analysis. Okay, so RFLP analysis will give you a chance of selection. Okay, selection based on variation, based on variation at genetic level. This is very important. So it gives you a chance of selection based on the variation at the genetic level. Now the जो variation है, that variation we need to check. Okay, so check करने का, variation check करने का हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. We can go for the PCR also, but PCR is a costly affair, है ना, and we need to go at a molecular level. तो इतना costly नहीं जाना है, तो we can go for the RFLP. ठीक है, RFLP का एक एडवांटेज ये है कि आप इसको मास स्क्रीनिंग कर सकते हैं. ठीक है, यानी बहुत कम पैसों में आप बहुत ज़्यादा लोगों के, बहुत ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स को स्क्रीन कर सकते हैं. So this is very important. So ये करने के लिए हम करेंगे क्या? That we have to see. What we will do? We'll isolate the genome of maybe one plant, two plant, or so many plants, and then we'll digest it. Okay. What we'll do? We'll digest it. After making the digestion by using a particular restriction endonuclease, if that site is available into that particular genome, that genome will be fragmented into number of nucleotide sequences. Similarly, second, whenever they will find the place, they will get digested at a particular position, something like this, and you will see that the position of restriction digestion is varying. Okay, since they are varying in the restriction digestion position, the sequence of one particular fragment will remain variant as compared to another. Okay, so what will happen? They are becoming variant. Okay, they are becoming markers. This is a very unique marker as compared to this.
Result in what will happen once the restriction digestion has been taken place? We'll put them on a gel. We'll put them on a gel. So first we'll put the first genomic DNA fragment, and then on a second well we'll put the second one. So through the wells what I will do, I will run this DNA fragments. अब क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के हैं तो ये जब माइग्रेट करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, so they will separate according to molecular weight as you all know. But क्योंकि इनके molecular weight अलग अलग है, you will find a very different position of the markers or the DNA fragments. आपको अलग अलग fragments दिखेंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पे. पर अगर वो सेम दिखते हैं, ठीक है, या 80% सेम दिखते हैं कुछ इस तरह जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, व्हाट डज दिस मीन्स? कोई बता सकता है? अगर वो सेम है फ्रैगमेंट्स में तो सेम प्लांट होंगे. हाँ वो सेम प्लांट हो सकते हैं, ठीक है. बट एक चीज इसमें थोड़ी कंफ्यूजिंग ये है कि जब हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन जब हम कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं. वो एंडोन्यूक्लियस के जीनोम में कितनी जगह कटिंग साइट है ये हमको पता रहनी चाहिए. बराबर है? हाँ है ना? हाँ पता रहना चाहिए. और वो जरूरी नहीं है ना कि हर जगह जाके बाइंड करेगा और कट करेगा. इसलिए इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी रह सकती है कि आपको ये जो दिखता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैंडिंग पैटर्न, ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैंडिंग पैटर्न. ये आपको कब दिखेगा? जब आप इसको लेबल कर लेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग एनी डाई एंड ऑल, ठीक है, इथिलियम ब्रोमाइड एंड ऑल डाल के आप उसको स्टेन कर सकते हैं. पर इसमें इतना अच्छे से कंफर्मेशन नहीं होता कि प्लांट सही में अलग अलग है या नहीं है. बट इट गिव्स यू 50% ऑथेंटिकेशन. ओके, क्या कर सकते हैं हम इसमें से? 50% ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं. सेकंड लेवल पे अगर पहुंचना है, जहां से आप एटलीस्ट 100% तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो कॉन्फिडेंस लेवल पे, तो आप क्या करोगे? अब ये जो डीएनए है जो जीनोम नंबर 1 का है, प्लान नंबर 1 का है, और ये जो प्लान नंबर 2 का है, ये कट हो गया और उसने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली. इस हर एक फ्रैगमेंट में जीन्स होंगे या नहीं होंगे? बताइए मुझे. जीन्स होंगे या नहीं होंगे? कोई बताएगा? जीन्स रहेंगे या नहीं रहेंगे इस फ्रैगमेंट? होगा या नहीं होगा? अरे जीनोम है तो जीन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेंगे सर. हाँ, अगर जीनोम है तो जीन रहेंगे ना. पर क्वेश्चन ये है कि जब ये फ्रैगमेंट्स अलग अलग हो गए हैं तो जीनोम जीन की पोजीशन अलग अलग हो जाएगी ना. मान के चलते एक जीन में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ जिसका नाम है 16S, ठीक है, क्या नाम है उसका? 16S. तो ये 16S जीन है, ये नंबर 1 वाले जीनोम में और उसी तरह नंबर 2 वाले जीनोम में, दोनों में रहेगा या नहीं रहेगा? पहले बताइए. whether it will remain present or not, क्योंकि ये दोनों सेम प्लांट से हैं तो प्रेजेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे? whether it will remain present or not, they will remain present. okay, but क्योंकि डाइजेशन का पोजीशन अलग अलग है तो हो सकता है कि उनका लोकलाइजेशन अलग अलग जगह हो जाए. मान के चलते हैं कि इस जगह उसका पोजीशन है तो यहाँ पे भी इसी जगह कहीं पे आजू बाजू में उसके पोजीशन रहेगा. पर क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंटेशन का साइज अलग है और इसका फ्रेगमेंटेशन का साइज अलग है, आप देख सकते हो कि ये छोटा साइज है और ये बड़ा है, तो पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो अब 16 आरआरएनए है ये थोड़ा ऊपर स्पैन करेगा और ये जो दूसरा है क्योंकि ये स्मॉलर साइज है तो ये ज्यादा माइग्रेट करेगा और थोड़ा नीचे पोजीशन करेगा. ठीक है, समझ रहे हैं क्या आपको सबको? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नो ना. ओके, सो पोजीशन नीचे पोजीशन करेगा वो.
अब आपका ये जो है ना, ये एक्चुअली मार्कर है। कौन है? ये मार्कर है। RFLP यानी डाइजेशन जब कर रहे हैं, ये मार्कर नहीं है। समझे क्या? कभी भी ध्यान में रखो, हम बहुत बार रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं और RFLP पढ़ाते हैं, तो RFLP यानी रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ द DNA नहीं होता, उसका और एक स्टेप आगे जाना पड़ता। अब आपको, आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया और आपके पास में बहुत सारे बैंड्स आ गए, राइट। ये बैंड्स जो है ना, वो आपको दिखते नहीं, ठीक है। पहले फिर अगर हम उसको ETBR से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो दिखेंगे नहीं, दे विल सिंपली रिमेन प्रेजेंट, ओके, दे विल सिंपली रिमेन प्रेजेंट। तो आपके जो बैंड्स है वो यहाँ पे कहीं तो भी प्रेजेंट रहेंगे कुछ इस तरह, पर वो दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है। दिस ऑल विल रिमेन कलरलेस, है ना, बिल्कुल कलरलेस रहेंगे। हमको करना क्या है, ये जो 16S RNA जीन था, 16S RNA जीन था, इसको टारगेट करना है इस जेल के ऊपर, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, अगर मुझे एक ही बैंड पे, यानी ये बैंड पे और ये वाले बैंड पे मुझे वो 16S RNA मिल जाता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, दोनों प्लांट सेम है, ठीक है। पर अगर मुझे ये यहां नहीं मिलता है, कहीं नीचे मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये दो प्लांट्स क्या है, टोटली जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है, राइट। यानी ये दोनों डिफरेंट है। तो समझो कि ऐसे एक नंबर वाले जो प्लांट्स है, ऐसे और 7 प्लांट्स मुझे सेम मिले, यानी उनके सभी के ऊपर यहाँ पे स्पॉट मिला मुझे 16S RNA का, ठीक है। तो वो सारे सातों के सातों प्लांट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर मुझे कुछ प्लांट्स ऐसे मिल रहे हैं या कुछ और अलग जगह मिल रहे हैं, तो मैं उनको आराम से सिलेक्ट करके फिल्टर कर सकता हूँ कि कितने प्लांट सेम है, कितने प्लांट्स अलग है जेनेटिकली, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मार्कर। अब आप बोलोगे सर ये 16S RNA आपने यहाँ डिटेक्ट कैसे कर लिया, ये बैंड के ऊपर, ठीक है। इसको करने का तरीका आसान है। सबसे पहले हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में उसको सदर्न ब्लॉट करेंगे। कौन सा? सदर्न ब्लॉट, पता है ना, सदर्न ब्लॉट ट्रांसफर ऑफ DNA, ठीक है, ऑन अ पेपर। तो सदर्न ब्लॉट करने के बाद में इस पर्टिकुलर इसको DNA को हम करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रोब के साथ में ब्लॉट, ठीक है। और वो प्रोब एक सीक्वेंस है जो 16S का है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या आपको? एक 16S का सीक्वेंस रहेगा जो प्रोब होगा, और उसको हमने एक रेडियो एक्टिव लेबल लगा दिया है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड जो रहेगा, ये यहाँ जाके इसके साथ में रिएक्ट करेगा एंड इट विल गो एंड विल बाइंड, इट विल बाइंड। अगर उसका स्पेसिफिक है तो यहाँ जाके बाइंड कर देगा, उसी तरह यहाँ पे भी जाके बाइंड करेगा। और जैसे ही बाइंड करेगा हम उसको रिएक्शन करने देंगे, एंड देन विल अलाउ टू चेक आउट फॉर दिस रिएक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिव लेवल से या फ्लोरोसेंस लेवल से। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बैंड फ्लोरस करते हुए, यानी अल्टीमेटली आउटपुट में कैसे दिखेगा, आउटपुट में आपको दिखेगा कि एक बैंड यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और एक बैंड यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये दो प्लांट्स अलग अलग है। पर अगर आपको कुछ बैंड ऐसे दिखते हैं तो समझ जाना कि बैंड्स यानी ये दो प्लांट सेम है, ठीक है। इस तरह से उसका एनालिसिस किया जाता है। दिस इज योर RFLP एनालिसिस, ठीक है। और एक RFLP PCR टेक्नोलॉजी भी होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको आज सिखाऊंगा। ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबको समझ गया? कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, तो ये RFLP टेक्नोलॉजी है। अब हम आगे वाला पढ़ते हैं फर्स्ट, दैट इज नोन एज AFLP। AFLP यानी एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम PCR टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, विल यूज PCR टेक्नोलॉजी। अब PCR टेक्नोलॉजी में AFLP कैसे यूज करते हैं ये थोड़ा देख लीजिए। इसको
हम जो प्राइमर इस्तेमाल करेंगे वो स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज यानी जनरली 8 बेस पेयर्स के होते हैं, 8 बेस पेयर्स, ठीक है। और ये 8 बेस पेयर का जो प्राइमर होता है ये रैंडम प्राइमर होता है। क्या होता है? रैंडम प्राइमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडम प्राइमर। इससे क्या होगा, ये रैंडम प्राइमर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई सीक्वेंस स्पेसिफिक हम बनाते नहीं इसको, ठीक है, सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं बनाते। जैसे हमने पीसीआर में किया था ना, प्राइमर डिजाइनिंग में पर्टिकुलर जीन लिया था, वहां से उसको से थ्रू प्राइमर बनाए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं बनाते, हम रैंडमली सीक्वेंस ले लेते हैं। अब ये जब रैंडम सीक्वेंस है और छोटा है कुछ इस तरह से, तो इसकी बाइंडिंग साइट जो होगी, बाइंडिंग साइट विथ जीनोम, है ना, कम होगी या ज्यादा होगी बताएंगे? क्योंकि 8 ही न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर है, तो बाइंडिंग साइट ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। नहीं, बाइंड होने की ज्यादा, बाइंड यानी बाइंडिंग साइट यानी अटैचमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पोजीशंस मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना उसको। यस सर। जितने छोटे सीक्वेंसेस हो, मैंने बताया था ना, जितना छोटा प्राइमर उतनी उसकी बाइंडिंग होने की यानी अलग अलग जगह उसको मिलने की ऑकरेंस रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जितने छोटे छोटे रहेंगे उतने बाइंडिंग साइट्स बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मार्कर है, ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, मार्कर है। अब मार्कर क्यों बोल रहे हैं हम इसको, मैं आपको समझा देता हूँ। कंसीडर करिए आपके पास में एक जीनोम है, ठीक है, और इस जीनोम को आपने पीसीआर रिएक्शन में पुट कर दिया विद दिस प्राइमर जो हमने अभी बताया, ठीक है, ये वाला प्राइमर, इसको उसके साथ में रिएक्शन करवा दिया। अब उसके बहुत सारी साइट्स मिल सकती है बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो रैंडमली कहीं पे भी जाके क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, अलग अलग जगह जाके बाइंड करेगा, ठीक है। और छोटे छोटे एम्प्लीकॉन्स बनाएगा, यानी यहाँ से यहाँ बाइंड होगा, फिर यहाँ से पीसीआर शुरू करेगा, फिर यहाँ बाइंड होगा, यहाँ से पीसीआर शुरू करेगा, यहाँ बाइंड करेगा, फिर यहाँ से पीसीआर। इस तरह से क्या करते जाएगा वो, अलग अलग जगह का अलग अलग एम्प्लीकॉन करते चले जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, बहुत सारे बैंड्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मान के चलिए कितने बैंड बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैंड्स बने। तो ये जो जीनोम है ये किसी एक प्लांट का है, मान के चलते प्लांट 1। फिर उसी तरह हमने प्लांट 2 का लिया, प्लांट 2 का जीनोम लिया, उसके अंदर भी कहीं तो भी जाके क्या कर रहा है वो, बाइंड कर रहा है। और उसके समझ लो 8 बैंड्स बने मिल गए। तो किसी को 8, किसी के 12 एम्प्लीकॉन मिले और किसी के 8 एम्प्लीकॉन मिले। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो क्या होगा, हमको कितने बैंड्स मिलेंगे, 12 बैंड्स मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के ऐसे 12 बैंड्स मिलेंगे हमको। और प्लांट 2 में हमको 8 बैंड्स मिलेंगे विच में बी ऑफ डिफरेंट साइज। रिजल्टेंट ये एम्प्लीफिकेशन जो है ये पॉलीमॉर्फिक है, राइट, है ना, एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिक, यानी एम्प्लीफाई हुआ वो फ्रैगमेंट, है ना, और उसकी लेंथ अलग अलग है, इसलिए वो पॉलीमॉर्फिक है। इसके बेसिस पे मैंने उसको डिटेक्ट कर लिया 1 और नंबर 2। इसके और एक लेवल आगे जा सकते हैं हम वो है डिटेक्शन ऑफ मार्कर जीन, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, डिटेक्शन ऑफ मार्कर जीन, यानी उसमें एक पर्टिकुलर मार्कर सीक्वेंस या मार्कर न्यूक्लियोटाइड रेंज पोजीशन ढूंढ सकते हैं। क्या करेंगे, इफ आई कंसीडर वन ऑफ द प्रोब, यानी अगर मुझे कोई सीक्वेंस ढूंढना है इसके अंदर तो मैं ढूंढ सकता हूँ। फिर जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे, जेल को ब्लॉट कर देंगे सदन ब्लॉट से, और आप उसको पेपर पे ले लेंगे। पेपर पे साथ में एक प्रोब ऐड कर देंगे। प्रोब ऐड करने के बाद में वो अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाके बाइंड करेगा। और अगर वो बाइंड अलग अलग जगह कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वेरिएंट है, यानी प्लांट नंबर 1 इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट नंबर 2। पर अगर वो एक ही लाइन में बाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि प्लांट्स आर ऑफ सेम टाइप। समझा क्या सबको?
यस सर। पहले वाले में डाइजेशन कर रहे थे, डाइजेशन करने के बाद में फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें प्राइमर यूज करके जो एम्प्लिकॉन आ रहे हैं वो पॉलीमॉर्फिक है और उनको डिटेक्ट किया जा रहा है। ये दोनों मॉलिक्यूलर मार्कर्स बहुत काम की चीज है अगर आपको स्पीसीज वेरिएशन या सिलेक्शंस करने हैं तो। सो ये करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जीनोम कौन से एंडोन्यूक्लियस से कट कर होता है, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा अगर आपको आरएफएलपी करना है तो, है ना। आरएफएलपी के लिए क्या क्या लग रहा था आपको, क्या लग रहा है? सबसे पहली बात है जीनोम विल बी रिक्वायरिंग एंड देन विल बी रिक्वायरिंग एंडोन्यूक्लियस, राइट। एंडोन्यूक्लियस, ये दो चीजें आपको लग रही है। तो कोई मुझे ये बताएगा कि अगर मुझे किसी जीनोम को कट करना है तो मैं कौन सा एंडोन्यूक्लियस लेना चाहिए मुझे? ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है ना। If I wanted to cleave any genome of particular bacterium or any human species also, तो मैंने कौन सा एंडोन्यूक्लियस यूज करना चाहिए या रैंडमली यूज करना चाहिए? वो तो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा ना सर। यस, ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, बराबर है। ऑर्गेनिज्म का जीनोम वेरी करता है, राइट। हर एक ऑर्गेनिज्म का यस। जीनोम वेरी करता है। तो तो मान के चलो मेरे लैब में बैम H1 है, मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसका नाम क्या है, बैम H1। ये कितने टुकड़े फॉर्म करेगा मुझे बता सकता है कोई? अगर मेरे पास में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस सबटाइलिस, बता सकता है कोई? कल हमने सॉफ्टवेयर पढ़े थे, मैडम ने आपको सॉफ्टवेयर समझाया था, याद होगा। उसमें क्या लगाया था हमने? लूपिंग, है ना। लूपिंग लगाई थी ना ढूंढने के लिए कंटिन्यूअसली। ये उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना। आपके पास में क्या है, आपके पास में क्वेश्चन है, आपके पास में एक जीनोम है, ठीक है। जीनोम किसका है, किसका बताइए? बैसिलस सबटिलिस। हाँ, बैसिलस सबटिलिस का जीनोम है आपके पास में। और आपको इसको किससे कट करना है? जीनोम को कट करना है बाम H1 से। बामेश्वर से, राइट। ये मेरा क्वेश्चन है और मेरे को आउटपुट चाहिए कि कितने कितने फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, है ना। मेरा क्वेश्चन है कितने फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर कोई दे सकता है क्या, सॉफ्टवेयर थ्रू दे सकता है क्या, या फिर लॉजिकली दे सकते हैं क्या? मजेदार है ना। यस। हाँ। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे पास एक बैसिलस कोएगुलेंस है, क्या है? बैसिलस कोएगुलेंस। और ये दोनों बैक्टीरिया वेरी बहुत क्लोज है, बैसिलस सबटिलिस और बैसिलस कोएगुलेंस बहुत बहुत क्लोज है ना। इसको भी मैं बैम H1 से क्लिक करता हूँ तो सेम फ्रैगमेंट्स मिलेंगे क्या दोनों के? दोनों के सेम फ्रैगमेंट्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना, है ना। और मेरे पास एक इशेशिया कोलाई है, ठीक है। क्या बोला है? इशेशिया कोलाई। इसको भी मैंने बैम H1 से क्लिक किया तो क्या इसके भी मुझे सेम फ्रैगमेंट मिलेंगे क्या? बताएंगे? वो बाम H1 से कट होगा क्या? हम्म बोलिए। कट होगा और सेम फ्रैगमेंट मिलेंगे क्या जैसे इसके मिल रहे हैं वैसे, कि अलग अलग मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। यस, आंसर होगा डिफरेंट, डिफरेंट मिलेंगे आपको, है ना। तो ये मार्कर है या नहीं है बताइए फिर, अगर डिफरेंट मिल रहा है तो, है ना। मार्कर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पढ़ने के लिए हमको एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा जिसका नाम है, या आप इसको कॉपी कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ। ये आप अपने पास लिख लीजिए, ये वाली वेबसाइट का नाम insilico.ehu.eus।
इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत सुंदर है, अपन उसमें जाके देखेंगे। कॉपी दिस। ये है, ठीक है, बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाए हैं, कुछ कुछ हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर हमको देखना है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन वाला, राइट, है ना। तो हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन वाला देखेंगे, इसको क्लिक करेंगे। अभी मेरा क्वेश्चन क्या था, ये मेरा क्वेश्चन था ना, बैसिलस सबटिलिस का बैम H1 से कितने फ्रैगमेंट्स होंगे, क्योंकि मुझे इसको किसमें यूज करना है, समझा क्या आपको, सबको समझ रहा है ना। यस सर। हाँ, हमको करना क्या है, हमको एक डाउट है, किसी ने तो भी एक क्वेश्चन दे दिया हमको कि आपको RFLP प्रोफाइल करना है, किसका करना है, RFLP प्रोफाइल ऑफ बैसिलस सबटिलिस, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब RFLP प्रोफाइल करना है तो हमको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में मैंने चूज किया अभी कौन सा, रैंडमली चूज किया है मैंने, तो बैम H1 चूज किया। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा, बिफोर गोइंग इनटू द RFLP, how many fragments we will get from the digestion, है ना, कितने फ्रैगमेंट्स हमको मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ये हमको पता रहना चाहिए। सो इसका आंसर जो है ये सॉफ्टवेयर दे सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहली बात है, देखो, दिस टूल अलाउस टू रिट्रीव नंबर ऑफ क्लीवेज यानी रिस्ट्रिक्शन साइट्स yielded by commercially available endonucleases in up to date sequence prokaryotic genome। ये जो नाम दिख रहे हैं ना, ये सबके ऑर्गेनिज्म के जीनोम है बैकड्रॉप में, ठीक है, इसके पास में जीनोम है। आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वो जीनोम उसका सिलेक्ट हो जाएगा। व्हेन द नंबर ऑफ फ्रैगमेंट इज बिलो 50, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज सिमुलेटेड, ठीक है। अगर आपके इसमें 50 से कम होगा तो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी को याद होगा, बड़ा स्टार्टिंग में, ठीक है, कि मेरे पास एक ह्यूमन जीनोम है। ह्यूमन जीनोम कितने क्रोमोसोम, 24। 24। पर ब्लड में कितने हैं, ब्लड में कितने क्रोमोसोम्स है, 46। 22। हाँ, 46। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस्ड में 24 है, पर पूरे ब्लड में तो पूरे बराबर है ना, 46 रहेंगे ना, बराबर है ना। यस सर। तो आपके पास में पूरे 46 क्रोमोसोम्स हैं और उसमें से मुझे क्रोमोसोम नंबर 2 आइसोलेट करना है, मान के चलता हूँ, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2 आइसोलेट करना है। तो इसके लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने पढ़ाया था शायद आपको, है ना, समझाया था कि पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इसी तरह बैक्टीरिया में भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ फ्रैगमेंट 50 से नीचे होंगे तो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हमको क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म का एनालिसिस करना है, बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस। हम यहाँ चेक करेंगे, है ना, बैसिलस दिया हुआ है, देखो बैसिलस, इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ आके फिर से सिलेक्ट करेंगे बैसिलस, दिख रहा है, बैसिलस सबटिलिस। अब ये एक ऑप्शन है यहाँ पे, फाइंड एंडोन्यूक्लियस सील्डेड फ्रैगमेंट्स विद इन अ रेंज ऑफ मिनिमम 0 to 50। ये पहला ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन क्या बताता है, आप एक पोजीशन दे दीजिए जीनोम के अंदर और उसके अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होंगे वो आउटपुट में आ जाएंगे।
मैं मान के चलता हूँ मैंने उसको 6000 न्यूक्लियोटाइड तक का रेंज दिया, means I am asking it that please give me all endonucleases who are cutting between first nucleotide to 6000 nucleotides. ठीक है, फिर आपके पास में यहाँ ऑप्शंस भी है कि कौन से हैं। ठीक है, आप यहाँ से चूज भी कर सकते हैं कि वही एंडोन्यूक्लियस दो जो ब्लंट एंड या ओवरहैंग देंगे। समझता है ना ये ब्लंट और ओवरहैंग? तो ये ब्लंट एंड ओवरहैंग यू कैन चूज, कोई भी उसमें से एक चूज कर सकते हैं, या फिर ऑल रखिए एंड डू द रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो देखिए they are giving you all the restriction endonucleases which are cutting from first nucleotide to 6000 nucleotide। ये सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पर हमारा एम ये नहीं है, इसलिए हम बैक जाएंगे, हम यहाँ आएंगे। ठीक है ना, कट जीनोम विद सिलेक्टेड एंडोन्यूक्लियस, कौन सा चाहिए, कौन सा सिलेक्ट करना है? BAM-H1। BAM-H1, BAM-H1 सिलेक्ट करेंगे और कितने टुकड़े मिले? 238। हाँ 238 यानी 238 टुकड़े मिलेंगे उसके अंदर। समझ रहे आपको, 238 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, यानी आपका ये एंडोन्यूक्लियस 238 बार कट करेगा आपके बैसिलस सबटिलिस को। ठीक है, अब और हम और थोड़ा दूसरा देखते हैं। तो इसने कट नहीं किया जहां तक है ना, कट नहीं किया। देखो कितने बार कट कर रहे हैं, 6000 टाइम्स, बहुत बार टुकड़े कर दिए उसने, यानी ये तो कभी यूज ही नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है, इसका यूज बता सकता है मैं ये क्यों क्यों ऐसा एनालिसिस कर रहा हूं? कोई मुझे बताएगा ये इन सिलिको हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा? बताएगा कि कोई, मैं बताऊं? सी, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना आरएफएलपी एनालिसिस या कुछ भी, तो आपको तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चूज करना पड़ेगा कि कौन सा एंडोन्यूक्लियस काम का है मेरे। तो आप रैंडमली कैसे चूज करेंगे कोई भी एंडोन्यूक्लियस? पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा एंडोन्यूक्लियस कितने बार तोड़ सकता है और रिजल्टेंट मुझे कितने बैंड्स मिलेंगे, राइट? अब देखो समझ लो गलती से आपने BTS1 सिलेक्ट कर लिया, तो कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे? 1520। तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा कट करने के लिए, और उससे बहुत छोटे 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 फ्रैगमेंट्स बनेंगे। रिजल्ट इट इज वेरी टफ टू पुट इट एज अ मार्कर। इसलिए आपको इन सिलिको पहले ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि कौन सा एंडोन्यूक्लियस कम से कम टुकड़े बनाता है। जो सबसे कम बनाएगा उसको आप RFLP एनालिसिस में टेस्ट करेंगे। समझ रहे हैं? सबको समझा? Yes, sir। चलिए, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। हमारा पहला जो एम था वो हमने क्लियर कर लिया कि एंडोन्यूक्लियस जब आपको यूज करने हैं RFLP के साथ में, तो आप इस वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक वेबसाइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नेप कटर। लिख के रखिए आपके पास में, नेप कटर। ये भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बताती है आपको कि कैसे कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक पुट करता हूँ 8 नहीं, मेरा पुट कर दिया मैंने सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मैंने पुट कर दिया, इसका लेंथ है 1132 न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, या चाहो तो आप कोई दूसरा सीक्वेंस भी ले सकते हैं।
मैं एक दूसरा लेता हूँ। ये जीन सीक्वेंस लेते हैं। सो ये इतना बड़ा जीन सीक्वेंस है। उसी तरह आपका जीनोम सीक्वेंस भी आप यहाँ पे या फिर पर्टिकुलर कोई भी रीजन आप उसमें पुट कर सकते हैं और आप उससे पूछ सकते हैं कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये आपको ऑल कमर्शियली अवेलेबल स्पेसिफिकेशंस दे देगा या फिर नेव एंजाइम्स, ये कंपनी है एक्चुअली नेव बायोलैब्स करके, इनके जितने भी एंजाइम्स हैं उनका कट करके बता देगा कि कौन से एंजाइम्स है। यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद में वो आपको बताएगा कि कौन से एंडोन्यूक्लियस कट कर सकते हो उस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कस्टम डाइजेस्ट करेंगे। कस्टम डाइजेस्ट में सिर्फ एक पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस को मैंने चूज किया और बोल रहा हूँ डाइजेस्ट। तो देखिए वो यहाँ कट कर रहा है 408th पोजीशन पे। ठीक है, यानी कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे मुझे बताएंगे कोई? एक बार कट कर रहा है तो कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे? एक बार डीएनए कट कर होता है तो कितने टुकड़े बनेंगे? 2, राइट, वेरी गुड। अब देखिए ये जेल पे कैसे दिखेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है व्यू जेल, क्लिक करेंगे तो आप जब जेल करेंगे ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होगा ना, जेल जब भी चलाते हैं तो हमको मॉलिक्यूलर मार्कर चलाना पड़ता है उसके साथ में। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मार्कर्स है अलग अलग टाइप के। तो मैं 100 बेस पेयर का डीएनए लैडर ले लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरह बैंड दिखेंगे। और जब मैं 100 बेस पेयर का मार्कर ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक फ्रैगमेंट क्या हो रहा है, टॉप में जा रहा है, मार्कर के लाइन में नहीं आ रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। तो मैं 1 kb लेके देखता हूँ, 1 kb फिट बैठ रहा है क्या? देखिए लाइन में आ रहा है ना। मुझे इससे ये भी समझ में आ गया कि जेल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। देखिए थोड़ी मैंने लेंथ बढ़ा दी जेल की, तो ये आ रहा है और ये 0.7% का एगारो जेल है। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, 1% लेके देखता हूँ तो आ रहा है क्या? नहीं, ये कभी भी आ नहीं रहा है इसके अंदर क्योंकि मार्कर इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप छोटा जेल कितना भी छोटा बड़ा करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मार्कर के नीचे ही जाएगा। यानी 500 बेस पेयर के नीचे है ना ये, क्योंकि 408 न्यूक्लियोटाइड का ही है और इसका मिनिमम मार्कर जो है वो 500 बेस पेयर का है, इसलिए हमेशा नीचे ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप 100 बेस पेयर वाला लेते हैं तो नीचे वाला मार्कर एनालिसिस में आएगा, ऊपर वाला नहीं आ पाएगा। और अगर आप 1 kb मार्कर ले रहे हो तो ऊपर वाला एनालिसिस में आ रहा है और नीचे नहीं। ये देखिए ये अच्छा आ रहा है, 1 kb प्लस डीएनए लैडर दिख रहा है। रिजल्टेंट ये अच्छे से कवर हो रहा है, यानी ये 10,000 से लेके 100 बेस पेयर तक है एंड ये आपका पूरा सीक्वेंसिंग कवर कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कवर कर रहा है। समझ रहे ना ये सबको? इसलिए थेरोटिकली चाहिए बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप उसका एक्सपेरिमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, एएफएलपी। एएफएलपी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, अब उसको अलग तरीके से समझते। देयर इज अनदर टेक्निक व्हिच नोन एज इन सिलिको एएफएलपी पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। ये मार्कर्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस इन सिलिको एएफएलपी पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, थोड़ा समझिए। एएफएलपी हमको समझ गया, जहां पे हमने क्या किया था, अलग एक प्राइमर लिया था, उस प्राइमर से जीनोम को अलग अलग जगह एम्पलीफाई किया था
एम्पलीफाई करने के बाद में हमको उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिले थे। छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिलने के बाद में हमने उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था और उसके बाद में प्रोब से अटैच कर दिया था। ये और एक टेक्निक है जहां पे थोड़ा सिस्टम अलग करके हम AFLP को मार्कर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हो क्या रहा है थोड़ा थोड़ा समझिए। AFLP यानी एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये सबसे पहले जुबेर एंड वॉस ने डिस्कवर किया था। इसमें होता क्या है थोड़ा थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले आप अपना सेलुलर DNA निकाल लेंगे, विल आइसोलेट अ सेलुलर DNA एंड देन आप करेंगे विथ वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, आप उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद में आपको बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ में आप उसको कट करेंगे, आपको बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे। एंड देन जो भी फ्रैगमेंट्स मिलेंगे उनको लाइगेट करा देंगे विद द रिस्ट्रिक्शन हाफ साइड स्पेसिफिक एडाप्टर। समझाता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक DNA है, आई थिंक नीचे दिखेगा आपको, देखिए आपका क्रोमोसोम जो है यहाँ पे कट हो गया है, दिख रहा है। कट होने के बाद में उसके स्टिकी एंड क्रिएट हो गए, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट हुए इधर और इधर। आप देखिए दो अलग अलग कलर के साइड्स है, यानी दो अलग अलग कलर के एंडोन्यूक्लियस ने कट किया, इधर ब्लू कलर वाले ने एंडोन्यूक्लियस ने कट किया, इधर ग्रीन कलर वाले, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन वो यहाँ बोल रहा है, क्या करेंगे बोलता है, यू टेक अ सेलुलर DNA एंड यू कट इट विद वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिजल्टेंट उससे क्या बनेंगे, स्टिकी एंड्स। फिर इन स्टिकी एंड्स को हम लाइगेट करवाएंगे विद द रिस्ट्रिक्शन हाफ स्पेसिफिक एडाप्टर, ठीक है, टू ऑल रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। फिर हम एक ऐसा एडाप्टर बनाएंगे, एक ऐसा एडाप्टर बनाएंगे, देखो ये ऐसा एडाप्टर बनाएंगे जिसका हाफ एंड जो है ना, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइड के कॉम्प्लीमेंट्री है, दिख रहा है आपको। यानी इसके नीचे यहाँ अगर AT होगा तो यहाँ पे TA होगा, इस तरह से यहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा। रिजल्टेंट आपके एडॉप्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। तो ये स्टिकी एंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बताएगा कोई, कौन से एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लंट एंड, ब्लंट ब्लंट एंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, दिख रहा है ना, अभी ब्लंट एंड में कन्वर्ट हो गए। देखिए तब यहाँ पे आपको समझा, क्या क्या समझा, डाइजेशन ऑफ द टोटल सेलुलर DNA विथ वन और मोर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आपने उसको कट कर दिया, हाँ, कट करने के बाद आप उसको लाइगेट करवाएंगे किसके साथ में, रिस्ट्रिक्शन हाफ साइड स्पेसिफिक एडाप्टर्स, यानी उसको रिकॉग्नाइज करेगा वो और उसको बाइंड कर देगा। फिर सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ दिस फ्रैगमेंट्स विथ 2 PCR प्राइमर्स, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। Selective amplification of these fragments with 2 PCR primers that have corresponding adapter, okay, and restriction site specific signals. अब ये देखिए यहाँ पे बाइंड हो गया, यहाँ पे बाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्राइमर बनाएंगे जो यहाँ के लिए स्पेसिफिक रहेगा। देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ बाइंड होगा, एक यहाँ बाइंड होगा और एक यहाँ बाइंड होगा। तो ये कैसा स्पेसिफिक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट और एडाप्टर के सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक होगा, इसलिए एक यहाँ बाइंड होगा और एक यहाँ बाइंड होगा, समझ रहे हैं। रिजल्टेंट वो सिर्फ उसी बैंड को एम्पलीफाई करेगा ये पीसीआर के अंदर में जहां पे ये दो बैंड्स बाइंड होंगे, इधर एक प्राइमर बाइंड होगा और इधर एक प्राइमर बाइंड होगा। रिजल्टेंट जो पीसीआर एम्पलीफिकेशन होगा वो सिलेक्टिव रहेगा, इन्हीं का होगा, ऐसा वो बोल रहे। तो देन बाइंड हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, पीसीआर एम्पलीफिकेशन होगा, उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन हम करेंगे और वो एम्प्लीकॉन हमको जेल मैट्रिक्स पे दिखना शुरू हो जाएगा और वो फिर हम दैट वी कैन बी विजुअलाइज बाय द बैंडिंग पैटर्न, आपको उसके टिपिकल बैंडिंग पैटर्न वहां पे दिखेगा, ठीक है। यही चीज हमको अब देखनी है, इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना है। सबसे पहली बात है कि हमने थियोरेटिकली सब कुछ पढ़ लिया पर प्रैक्टिकली हमको उसको पढ़ना है।
तो जब प्रैक्टिकली हमको उसको पढ़ना है तो ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट पार्ट है डाइजेशन एंड लाइगेशन, जो उसने पहले पार्ट बोला था। देखिए यहाँ पे डाइजेशन करिए बोलते हैं आपके जीनोम का, एक या दो एंजाइम से। तो क्वेश्चन है कि कौन से एंजाइम से हम उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। ये तो आपके ऊपर है ना, यू नीड टू चूज व्हाट टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस यू हैव टू कट और किस तरह का लाइगेशन यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, दिख रहा है ये ब्लू कलर का, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कटिंग साइड आप चूज कर सकते हैं, इधर की और इधर की। आप चाहो तो सेम टाइप के भी दोनों ले सकते हो, ठीक है, समझ रहे हैं क्या, सेम टाइप के भी ले सकते हैं। चलो बताओ कौन सा लूं, कोई भी एक बताइए। चलो मैं एज APA1 ले लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो है ये ले लेता हूँ ASE1, ठीक है। आप कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द जीनोम द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट मस्ट बी सिलेक्टेड। इसमें क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ना, ये एक्चुअली जीनोम का पार्ट है। ये उस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अवेलेबल है बैकड्रॉप। यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा है कि कैसे करना है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि आप एक जीनोम सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोल रहा है वो सिलेक्ट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम द लिस्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 एंड देन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2। तो हमने देखा अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। They will be used to perform a complete theoretical DNA digestion, theoretical है, कंप्यूटर पे होगा, of the genome. Then selective nucleotides may also be introduced. आप इनका सिलेक्शन कर सकते हो। देखो यहाँ पे AG और GT दिया हुआ है ना, ये सिलेक्टिव, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। देखो मैं चेंज करता हूँ, ACGT है ना, इधर AC कर दिया, इधर GT कर दिया। ये क्यों यूज करना है मैं आपको बाद में बताता हूँ। The restriction enzyme available in the form have the following characteristics. They all will cleave DNA within a recognition sequence. ठीक है, the recognition sequence is not ambiguous, means repeat नहीं होगा, no degenerated nucleotides. They will all yield overhang ends. ठीक है, सब ओवरहैंग बनाएंगे, कोई भी ब्लंट एंड वाला इसमें इसमें जितने भी एंडोन्यूक्लियस है वो सारे ब्लंट ओवरहैंग बनाने वाले एंडोन्यूक्लियस है। Then selective nucleotides introduced in the form must match the upper strand of the DNA. Okay. So what will happen now? As a result of the DNA digestion, three types of DNA fragment will be produced. आप जब सही में जीनोम के अंदर में ये दो एंडोन्यूक्लियस पुट कर देंगे तो क्या होगा, उसने ये बोला सबसे पहला फ्रैगमेंट जो जीनोम के अंदर फॉर्म होगा वो इसका बनेगा, फ्रैगमेंट्स cleaved in both ends, बहुत इंपॉर्टेंट है, by same restriction enzyme। थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, तब आपको समझेगा क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास एक जीनोम है और इस जीनोम के अंदर मेरे पास RE1 एंड RE2 ऐसे दो एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। और मैं इनको बोलता हूँ कि गो टू दिस जीनोम, गो टू दिस जीनोम, गो टू दिस जीनोम एंड एक्ट, ठीक है। तो जब वो दोनों एक साथ एक्शन कर रहे होंगे इस जीनोम के ऊपर, तो उससे रिजल्टेंट कैसे टुकड़े बनेंगे बताएंगे कोई? कौन से टुकड़े बनाएंगे बताओ, कैसे कैसे फ्रैगमेंट्स होंगे? एक ऐसा रहेगा जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 ने तोड़ा है और दूसरे साइड में भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 ने तोड़ा है, बराबर है ना।
फिर एक फ्रैगमेंट ऐसा बनेगा जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 ने तोड़ा है और 2 ने तोड़ा है, और एक ऐसा फ्रैगमेंट बनेगा जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 ने ब्रेक किया है और 2 ने ब्रेक किया। समझा आपको सबको? क्योंकि आपने एक साथ कितने पुट किए? 2, इसलिए आपके पास कितने फ्रैगमेंट बनेंगे? 3 टाइप के। समझ रहा है? यही वो यहां बोल रहा है, देखिए fragments cleaved in both ends by the same restriction RE1 or RE2, then fragment cleaved in 5 prime end by RE1 and RE2, and then 3 prime end and 5 prime end। हाँ, ये एक चेंज रहेगा इसमें, बस एक इधर या उधर चेंज किया हुआ रहेगा, यानी 1 ये समझ लो 5 प्राइम एंड है और ये आपका 3 प्राइम एंड है, तो हो सकता है कि कभी 1 इधर कट करे या फिर कभी इधर कट करे। सो आइदर और इस तरह से उसने फ्रेगमेंटेशन दिया। तो ऐसे 3 प्रकार के आपके पास में टुकड़े होंगे, ऐसा वो बोल रहा है। देन ये हो गया, टुकड़े हो गए, तो 3 टुकड़े बनेंगे। देन इन EFLP PCR only type 2 and type 3 fragment will be amplified to yield the visible band। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AFLP में क्या होगा, जहां सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किए हुए हैं, दिख रहा है आपको, उनका एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। सिर्फ जहां अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी एक साइड RE1 ने तोड़ा और दूसरी साइड RE2 ने तोड़ा, उन्हीं का होगा। दिस इज ड्यू टू द लाइगेशन ऑफ डिफरेंट एडाप्टर्स। ठीक है, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे डाइजेशन हो गया, जैसे जैसे टूटेंगे 2 अलग अलग एडाप्टर यहाँ पे बाइंड होंगे। ठीक है, और ये एडाप्टर की खासियत है कि एक स्पेसिफिक है RE1 के लिए और एक स्पेसिफिक है RE2 के लिए, तो उन्हीं जिन फ्रैगमेंट्स को जाके वो बाइंड करेगा। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा ना, बाकी के जो जीनोमिक फ्रैगमेंट्स है वो स्टडी में नहीं आएंगे। ठीक है, रिजल्टेंट ये होगा कि आपका जीनोम का लोड जो है वो बहुत कम हो जाएगा डिटेक्शन के लिए। ये उसके पीछे की स्ट्रेटजी है। सो क्या होगा, this is due to the ligation of different adapters in each site of the fragment, which will allow a geometric increase of this kind of bands, है ना। रिजल्टेंट क्या होगा, उनका एम्प्लीफिकेशन होगा, क्योंकि यही वहां पे एडाप्टर बाइंड करेंगे। एक बार एडाप्टर बाइंड हो गया तो इसी को जाके कौन बाइंड होने वाला है, बताएगा मुझे कौन क्या बाइंड होने वाला है इसके बाद में जाके एडाप्टर को जाके कौन बाइंड होने वाला है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एडाप्टर स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्शन एंड स्पेसिफिक कौन है, प्राइमर्स। ठीक है, यहाँ पे जाके प्राइमर्स बाइंड होंगे, इसलिए उसी का एम्प्लीफिकेशन होगा। इसलिए टाइप 1 फ्रैगमेंट हैव बीन एलिमिनेटेड। ठीक है, इसलिए टाइप 1 के फ्रैगमेंट्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा फ्रॉम द कैलकुलेशन। सो एडाप्टर विल बी लाइगेटेड टू द DNA फ्रैगमेंट एज शोन इन द पिक्चर बिलो। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ दिस एडाप्टर आर पार्शियली डिफाइंड, ये आपको नीचे में दिखाया, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्राइमर बाइंड हो गया, पहले उसका डीनेचरेशन करेंगे, उसके बाद में यहाँ प्राइमर बाइंड हो गया, प्राइमर 2, रिजल्टेंट आपको एम्प्लीफिकेशन मिल गया। यही रीजन क्या होते जाएगा, एम्प्लीफाई होते जाएगा और ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। सो partial sequence of the primer necessary to perform AFLP PCR are suggested, ऊपर दिया हुआ है। When experiments are performed as shown in the page, several combinations of restriction enzymes used in a AFLP PCR will yield a large number of amplicons। ठीक है, so interpretation will be difficult। So in AFLP experiment performed by the service will not show bands when the number is above 50। ये जो सर्वर है आपको 50 के ऊपर में अगर कोई AFLP बैंड मिल रहा है तो उसको दिखाएगा नहीं। ठीक है, तो ये अब क्योंकि 50 के ऊपर अगर चला गया तो आपको प्रॉपर एनालिसिस नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसने बोला कि एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी का आप इस्तेमाल करिए। कौन सी स्ट्रैटेजी, मैंने आपको समझाता हूँ। देखिए अपने टॉप में आते हैं, मैंने आपको बोला था, देखिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, ये सिलेक्टिव है, यानी आप प्राइमर में आप ये 2 सीक्वेंस डाल दीजिए इसके अपोजिट,
इसके अपोजिट क्या होंगे, AC के अपोजिट कौन होंगे, TG। TG बराबर। और यहाँ पे GT के अपोजिट कौन रहेगा, CA। और यहां से पूरा प्राइमर रहेगा। तो ये जो रहेगा ना, ये सिलेक्टिव हो जाएगा, समझा क्या। आने आपको बहुत ज्यादा बैंड्स नहीं मिलेंगे फिर। तो ये बहुत ज्यादा बैंड्स आपको अगर नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्राइमर में और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस डाल देंगे जो अभी आपने बोला। इस साइड में क्या डालेंगे, प्राइमर 1 में, ये आपका मान के चलते प्राइमर 1 है तो इधर आएगा TG, और इधर प्राइमर 2 है तो आएगा CA, है ना, यहाँ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 50 के ऊपर आपको एनालिसिस नहीं मिल रही, तो इसने बोला देखिए 50 के ऊपर अगर आपको बैंड्स नहीं चाहिए तो क्या करें, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लासिक AFLP PCR। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स, यानी आपको बहुत ज्यादा बैंड्स नहीं चाहिए, तो आप क्या करिए, इसका इन अ क्लासिकल AFLP PCR आप करिए अलग टाइप का PCR, इसको बोलते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव PCR एम्पलीफिकेशन। क्या करेंगे आप, 2 कॉन्जिक्यूटिव PCR एम्पलीफिकेशन, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसा प्राइमर लगाएंगे, देखिए कौन सा वाला, देखिए ये वाला प्राइमर 1 और ये प्राइमर 2, देखिए ऊपर में, इसमें इसमें समझ में आ जाएगा। ये वाला लगाएंगे, इससे क्या होंगे, बहुत सारे बैंड्स मिल जाएंगे आपको, PCR के बैंड्स मिल जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक नया टाइप का प्राइमर उठाएंगे। ये नया टाइप का प्राइमर क्या करेगा, सिर्फ उसी रीजन को एम्पलीफाई करेगा जिस रीजन के लिए ये छोटा सा पार्ट सिलेक्टिव कर दिया हमने, बाकी के कोई भी रीजन को एम्पलीफाई नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 प्राइम एंड है। थोड़ा ध्यान देंगे, ये क्या है, 3 प्राइम एंड। और सब हमने ऑलरेडी समझा था कि प्राइमर का 3 प्राइम एंड बहुत सिलेक्टिव होता है नेचर में, ठीक है, इसलिए आप इसको हमेशा सिलेक्टिव करेंगे। रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए उसने बोला आप 2 consecutive PCR करेंगे। सो फर्स्ट वन इज परफॉर्म विद द प्राइमर विच मैचेस ओनली एडाप्टर्स, है ना, ये देखिए सिर्फ एडाप्टर तक मैच करते हुए ही गया, दिख रहा है ना पहला प्राइमर। इधर आगे आया है क्या, वो यहां तक आया है क्या, बताइए कोई, नहीं आया ना प्राइमर, यहाँ पर आया ही नहीं वो। पर हमने सेकंड प्राइमर जब बनाया तो देखो क्या किया, ये और थोड़ा आगे आ गया, इसलिए सिलेक्टिव हो गया, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज परफॉर्म्ड विथ the first PCR is performed with the primers which matches only adapters and sequence is recognized by the restriction internucleus. Resultant उससे amplicon मिला आपको, which are then used in a second PCR which with a slightly longer primers, है ना, थोड़ा longer primer था, and those primers will match adapters, restriction enzyme and the recognition sequence जो आपने दिया था, and they will contain one or more nucleotides in the 3' end. So the number of amplicons yielded in a second PCR are fewer, and बहुत कम मिलेंगे आपको second PCR में, and this way the number of bands will lower and interpretation of band pattern become easier. क्योंकि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा बैंडिंग पैटर्न होगा तो मुश्किल हो जाता है। So in silico AFLP PCR experiment allows the calculation of band pattern yielded when selective bases are added to the primer. ये बहुत सुंदर है। The selective bases must be introduced in the form as shown below. ठीक है, तो ये आपका है। अब इसको अपन एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टार्ट यूजिंग दिस टूल हम करेंगे। ये वेबसाइट आप एक बार पहले लिख लीजिए आपके पास में, लिख लीजिए इसको। फिर हम यहाँ से जाएंगे स्टार्ट यूजिंग दिस टूल। तो हम फिर से यहाँ पे आ गए AFLP PCR पे। क्या करना है, सबसे पहले हमको एक पर्टिकुलर
ऑर्गेनिज्म चूज करना है। तो आप चूज करिए ऑर्गेनिज्म, कौन सा लेना है? बैसिलस सबटिलिस ले, चलिए बैसिलस सबटिलिस नेक्स्ट स्टेप, बैसिलस सबटिलिस चूज करते हैं। क्या समझ रहे हैं? यहां क्या करेंगे बताएंगे, क्या करना है हमको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन चूज एंजाइम करना है। चूज करना है। हाँ, देखिए आप ये जो सीख रहे हैं ना, ये बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज है सारी, ठीक है, यानी ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते लोग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है पूरा एक प्रकार से समझ लो आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइमर डिजाइन करने हैं, वेरिएंट प्राइमर डिजाइन करने हैं, ये समझ लो। और ये हम सब इनसिलिको करके ही समझ सकते हैं कि कैसा उसको अच्छे से रिस्पॉन्स आता है या नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली उसको करना बहुत मुश्किल है। तो चलो हम देखते हैं, एज 1 ले लेते हैं, इधर भी सेम लें या अलग लें? अलग। हाँ अलग लेना पड़ेगा, चलो मैं कोई दूसरा लेता हूँ, क्या 1, यहाँ पे सीक्वेंस डालना है स्पेसिफिक, चलो ले लेते हैं GC और इधर ले लेते हैं GT, ठीक है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है कि आप प्लाज्मिड का जीनोम भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं बोलता नहीं हमको नहीं चाहिए, ठीक है। मिले, कितने टुकड़े मिले? कुछ समझ रहे हैं? समझा कि नहीं समझा? किसको समझा वो मुझे बताइए, नीचे में जो दिया है ना ये वाला, किसको समझा है वो मुझे बताए। कुछ समझा है कि नहीं बताएंगे? यहाँ क्या लिखा है देखिए, ये जो पोजीशन है ना 2505899, ठीक है, यहाँ पे आपका डीएनए कट हो रहा है इस कॉम्बिनेशन से, समझ रहे हैं, RE1 और RE2 के डायरेक्शन से, है ना, और टोटल जो लेंथ बन रही है वो है 2028, समझे, 2028, यानी यहां से अगर हम 2028 आगे जाएंगे तो आपको RE2 की रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी, समझा कि नहीं समझा? तो ये टोटल जो एक बैंड बनाएगा वो कितने का बनाएगा? 2028 का। और अगर अब सेकंड जो बैंड बनेगा वो RE2 RE1 से बन रहा है, वो 1201 बनेगा, समझा? किसी को डाउट? हाँ, रिजल्टेंट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिक AFLP PCR में, ठीक है, इन सिलिको AFLP PCR में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देन ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 1 में आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बोल रहा है, दिख रहा है ये वाले, ये उसके अल्टरनेटिव रिकॉग्निशन साइट्स हो सकती है या फिर आइसोसीजोमर्स हो सकते हैं, ये भी, ठीक है, ये उसकी साइट है रिकॉग्निशन साइट। देन अडाप्टर्स भी दिए हुए कि किस तरह के कौन से अडाप्टर्स आपने बनाने हैं, दिख रहा है, अडाप्टर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। समझा, ये पॉइंट क्लियर हो गए? यस सर।
अब हमने ये देख लिया है AFLP PCR, है ना। PCR RFLP हमने चेक किया क्या? नहीं किया ना। PCR RFLP अभी हमने पढ़ा है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा थोड़ा समझ लीजिए। ये स्क्रिप्ट जो है ये कॉम्प्यूट करेगी एम्प्लीकॉन yielded by PCR amplification and then position of the amplicon within the genome and their length will be shown, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है थोड़ा समझ लीजिए। ये एक PCR बेस्ड और रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। आई थिंक इंफॉर्मेशन मिलता है क्या इसमें? नहीं मिल रहा है ना। ओके, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से समझ में आएगा आपको। PCR में भी सिमुलेटेड अगेंस्ट अप टू डेट सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक जीनोम। यस, यहाँ पे आपके पास अप टू डेट जीनोम सीक्वेंसेस अवेलेबल है। जो प्राइमर्स यूज करेंगे उसका मिसमैच 2 तक अलाउड है और स्ट्रिंजेंसी इन सिलिको मस्ट बी कंसीडर हाई, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करते हैं। देखिए आपके पास में यहाँ पे प्राइमर्स देने, ठीक है, तो प्राइमर्स देने हैं। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइमर्स देके PCR एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। PCR एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम जो भी प्राइमर डिजाइन करेंगे, चलिए थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया है, इसमें 2 चीजें हैं, एक चीज याद रखिए। पहली बात है PCR करेंगे, उसके बाद में क्या करने वाले RFLP, ये थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। सो पहला इसलिए PCR होगा, उसके बाद में डाइजेशन होगा, ठीक है। बैसिलस सबटिलिस में जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। यहाँ पे आपको फॉरवर्ड और रिवर्स सीक्वेंसेस देने हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक जीन यूज किया जिसका नाम है 16S RRNA, ठीक है। ये 16S RRNA के जीन को एम्पलीफाई करने वाले प्राइमर्स है, इनको यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आप जब करेंगे तो आपको भी पर्टिकुलर प्राइमर्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी प्राइमर्स आप यूज कर सकते हैं जो उस जीनोम के लिए स्पेसिफिक हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया है। ये स्ट्रिंजेंसी बढ़ा दो यहाँ पे मिसमैच की, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको आउटपुट्स मिले। और कर दीजिए एम्पलीफाई। देखिए जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया हुआ क्या, थोड़ा समझ लीजिए। आपने ये प्राइमर्स लेके ये बैक्टीरिया का जीनोम लिया, बैसिलस अमाइलोलिक्विफैक्शन। तो ये प्राइमर आपके जीनोम के अंदर एम्प्लीफिकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता, ये उसने यहाँ शोकेस किया, ठीक है। तो उसने, और आपने बोला कि मैक्सिमम जो एम्प्लीकॉन है वो 3000 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए, यानी PCR प्रोडक्ट। तो जब मैंने इसको एम्पलीफाई किया तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आया है ना। देखिए मुझे यहाँ पे पॉजिटिव बैंड मिल रहा है, यानी जब मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगा, ये बैक्टीरिया का जीनोम लेके इसका PCR करूंगा इस प्राइमर के साथ, तो मुझे 1500 बेस पेयर का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेगा। ये दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर ये 10 तो बैंड यहाँ दिख नहीं रहे, ठीक है। ये इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि सारे के सारे एक ही मॉलिक्यूलर वेट के दिख रहे हैं ना, सारे के सारे 1544 के। बट आप थोड़ा ध्यान से देखना, इनकी पोजीशंस अलग अलग है। समझ रहे हैं क्या? ये पॉइंट समझा क्या किसी को, कि नहीं समझा? PCR एम्प्लीफिकेशन नहीं समझा या समझा? देखिए आज की मार्कर बायोलॉजी टफ बायोलॉजी है, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। जितना अभी तक हम समझ रहे थे ना, ये थोड़ा टफ बायोलॉजी है। फिर भी आप समझने की कोशिश उसको जरूर करिए। ये आपका जीनोम है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये जो नाम है ना, ये नाम यानी समझ लीजिए आपका जीनोम है। फिर मैंने उसको एक एंडोन्यूक्लियस दिया, पेयर दिया, ठीक है।
तो थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ अच्छे से समझे इसलिए। तो ये मेरे पास में 2 प्राइमर्स हैं, ठीक है। ये प्राइमर क्या करेंगे, अलग अलग जाके जाके बाइंड करेंगे। अगर उसकी साइट है वहां पे तो अलग अलग जाके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। अगर एक से ज्यादा साइट होगी तो एक से ज्यादा जगह जाके बाइंड करेंगे, और उतना रीजन क्या करेंगे, वो एम्पलीफाई फॉरवर्ड और रिवर्स, 1 2 3 4 5 6। कभी कभी जीनोम में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये जो 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सॉरी, ये जो 2 प्राइमर्स है वो एक ही जगह जाके बाइंड करे, यानी उसका ए बाइंडिंग साइड सिर्फ एक ही होगा, तो एम्पलीकॉन भी कितना होगा, एक। यहाँ क्या हो रहा है, उसकी साइड्स अलग अलग है, बहुत सारी साइड्स मिल रही है उसको, 1 है 2 है 3 है 4 है, यानी वो अलग अलग जगह जाके बाइंड हो रहा है। इसका मतलब ये होता है ये सीक्वेंस के लिए बहुत सारी बाइंडिंग साइट्स है जो उसकी कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब है पॉसिबिलिटी है कि आपका ये जो प्राइमर है इसके जीन्स डुप्लीकेट में है, समझ रहे हैं? यानी एक से ज्यादा सेम जीन अलग अलग जगह अलोकेटेड है, ठीक है। और अगर आपको एक ही जगह मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो जीन एक ही बार अवेलेबल है आपके जीनोम में। तो हमने जो 16s आरएनए का प्राइमर लिया है वो जिस जीन को एम्पलीफाई करता है वो बैक्टीरिया के अंदर एक से ज्यादा बार होता है। इसलिए आपको यहाँ क्या दिख रहा था कि वो अलग अलग जगह बाइंड कर रहा दिखा रहा है ना। इसका मतलब है कि ये जो प्राइमर है ये अलग अलग जगह जाके बाइंड करेगा। इसका और एक मीनिंग है कि आपके जीनोम के अंदर ये जो जीन है ये एक से ज्यादा बार अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे पोजीशन को। अब आपका ये सीक्वेंस आ गया, ठीक है। अब मैंने समझ लो ये सीक्वेंस ले लिया और इसको मैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करता हूँ। देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन दिया हुआ है क्योंकि हमको क्या करना है, पीसीआर आरएफएलपी, तो इसको रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करूंगा मैं, ठीक है। और गेट द लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टैबुलेटेड टेक्स्ट या टेबल में, मैं बोलता हूँ टैबुलेटेड में दो। फिर वो पूछ रहा है रिवर्स में चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट में चाहिए, क्योंकि आपको कौन सा एंडोन्यूक्लियस का कौन सा स्ट्रैंड कट करना है उसके बेसिस पे भी वो देता है। देखिए यहाँ पे मैं ऐसा कोई दे नहीं रहा हूँ, शो सीक्वेंसेस ऑन टॉप एंड गेटिंग। देखिए ये सीक्वेंस को कौन सा एंडोन्यूक्लियस कौन सी जगह कट करेगा ये सब दिया हुआ है ना। मजेदार, समझ रहे हैं क्या आप लोगों को, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, मुझे मालूम है आज टफ है। थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस पूछिए, डिस्कस करेंगे ना तो आपको समझेगा। जो चीज नहीं समझ रही वो समझ जाना कि दुनिया में बाकी लोगों को भी नहीं पता, समझे। और वो चीज अगर हमको पता चल गई तो फिर हम साइंटिस्ट हो गए, समझे। ये रिसर्च है, रिसर्च में आपके पास में प्रैक्टिकली जीरो भी रहे ना, पर थेरोटिकली अब 100% रहने चाहिए। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको थोड़ा अलग टाइप से समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। ये पॉइंट समझ गया क्या सबको? इसमें ये चीज है कि आपका जो पीसीआर प्राइमर होता है जरूरी नहीं है कि वो जीनोम में एक ही जगह जाके बाइंड करे, वो एक से जगह ज्यादा जगह जाके भी बाइंड कर सकता है। ये हमने पहली पॉइंट सीख ली थी। मेरा क्वेश्चन ऐसा है, पीसीआर आरएफएलपी कर रहे हैं, कौन सी चीज कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, पीसीआर पीसीआर आरएफएलपी, यानी पीसीआर आरएफएलपी। पहले एम्प्लीकॉन मिलेगा, ये जीनोम से हमको क्या मिला, सबसे पहले एम्प्लीकॉन है ना, ये मिल गया ना, ये छोटा सा इसका टुकड़ा मिल गया जीनोम का, ये हो गया एम्प्लीकॉन। फिर इस एम्प्लीकॉन को मैंने जब जेल से निकाल लिया तो मुझे एक छोटे से ट्यूब में मिल गया वो, है ना, बराबर है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये जो न्यू जीन सीक्वेंस मिला
इसको कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर सकता है और कौन सी जगह पे, ठीक है, और वो मेरे लिए मार्कर हो सकता है, ठीक है। तो मुझे एक पोजीशन पे कट करना है, मान के चलो 600 पोजीशन पे कट करना है, ठीक है। इस जीन के कितने पोजीशन पे करना है? 600 पोजीशन पे कट करना है। तो कौन सा एंडोन्यूक्लियस कट करेगा इसके 600 पोजीशन पे, बताइए कैसे बताएंगे? मुश्किल है ना? क्या कर रहे थोड़ा समझेंगे अपन फिर से एक बार। अभी इंटरेक्शन करेंगे, हाँ इंटरेक्टिव रखेंगे तो ही वो पॉइंट आपको समझेगा। एक एक कोई भी माइक ऑन रखो, किया किसी ने कभी माइक ऑन? किया है किसी ने? नहीं किया? ठीक। मेरे पास एक जीनोम है, ठीक है, किया है आई थिंक किसी ने कभी ऑन। मेरे पास एक जीनोम है, ये जीनोम का मुझे एक जीन एम्पलीफाई करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? जीन एम्पलीफाई करना है तो क्या 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 सिलेक्ट करना पड़ेगा उसका? प्राइमर, हाँ या ना? हाँ, तो प्राइमर मैंने सिलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ पे। अब ये प्राइमर सिलेक्ट कर लिया, यार मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी प्रोसेस कर रहा हूँ? कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? पीसीआर, राइट। हाँ, पीसीआर करेंगे तो एम्पलीफाई होगा, एक फ्रैगमेंट इधर से एक फ्रैगमेंट इधर से, तो ये फ्रैगमेंट अब क्या हो गया है, एम्पलीफाई हो चुका है, समझ रहे हैं ना? तो ये मेरे पास डीएनए आ गया, ये मेरे पास डीएनए आ गया। अब ये जो डीएनए है ये पीसीआर है, ठीक है। अब मुझे इसका आरएफएलपी करना है, क्या करना है? हाँ, आरएफएलपी यानी क्या? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए। तो डीएनए का रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट करना है, तो मुझे तो पता रहना चाहिए ना कि कौन सा एंडोन्यूक्लियस यूज करूं, समझ रहे हैं ना? पर मैं तो सब कुछ थ्योरेटिकली कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली कर रहा हूँ क्या? नहीं, पर थ्योरेटिकली करके भी उसके अंदर लॉजिकली कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो जीनोम सीक्वेंस यूज किया ना, ये कहां से उठाया मैंने? एनसीबीआई से, समझे? ये प्राइमर बराबर उसी जगह जाके बाइंड हो रहा है जो सीक्वेंस वहां पे अवेलेबल है, यानी रिजल्टन हमको एम्प्लीकॉन भी वही मिल रहा है जो नेचर में है। अब मुझे देखना है आरएफएलपी ढूंढना है, तो उसके लिए एंडोन्यूक्लियस चाहिए, तो मुझे 600 पोजीशन पे कट करना है ना। तो इस न्यूक्लियोटाइड के एम्प्लीकॉन के 600 पोजीशन पे कट करने वाला एंडोन्यूक्लियस ढूंढना है। तो कैसे करेंगे अब देखिए यहाँ पे, अब आपको फिर से समझाता हूँ। समझ लिए? अब यहाँ पे मैं एक बैसिलस सबटिलिस लेता हूँ, मान के चलता हूँ बैसिलस सबटिलिस लेना है, नेक्स्ट करता हूँ, बैसिलस सबटिलिस लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मिस प्राइमिंग थोड़ा बढ़ा देता हूँ और एम्पली सॉरी सीक्वेंस चाहिए फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है। एम्पलीफाई कितने मिले? फिर से 10 बैंड मिले उसको, 10 बैंड्स मिले। तो चलो मैं उसका फर्स्ट पोजीशन ले लेता हूँ, ये 98171 वाला मुझे टारगेट करना है उसका, मान के चलता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। अब मुझे क्या ढूंढना था? 600 पोजीशन पे कौन सा एंडोन्यूक्लियस कट कर रहा है? हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसको इसलिए रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करता हूँ, तो मिल रहा मुझे, देखो बैंड्स मिल रहे हैं, सॉरी एंडोन्यूक्लियस मिल रहे हैं, ये सब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। मुझे कौन सा रीजन पे चाहिए था? हाँ, और एक ही बार तोड़ने वाला चाहिए, ये दिख रहा है क्या? है ना, क्लोज है ना? हाँ,
तो इसको इसको पहले पिक्चर में रखते, तो ये 3 एंडोन्यूक्लियस जो है ये मैं मुझे आराम से उसका कट दे सकते हैं, है ना। और देख लेते कहीं और तो नहीं है। एक ही बार कट वाला चाहिए मुझे। नहीं है, 675 वाला ही है। ये आ गया इको R1, इको R1 है, अरे वाह इको R1 है, इसको क्लिक करें। ये सारी कंपनीज है जो उसको प्रोवाइड कर रही है, यानी आप उस एम्प्लीकॉन को इको R1 से कट कर दीजिए, ठीक है। आपको 2 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, कितने कितने साइज के मिलेंगे बताइए। 675 है ना। सर तो ये पता चलेगा क्या कि वो जीनोम किस ऑर्गेनिज्म का है, क्योंकि वो एंजाइम या डायरेक्टली। ये तो ऑलरेडी नोन है ना, बैसिलस सबटिलिस, उसी का ले रहे हैं। तो ये इसका जो पोजीशन है, ये जो एम्प्लीकॉन मिलेगा, ये एम्प्लीकॉन 9817वें पोजीशन का है। कितने का एम्प्लीकॉन मिल रहा है, कितने का एम्प्लीकॉन मिल रहा है। 1500। हाँ, और हमारा कट कितने में हुआ, उसके 1544 के कौन से पोजीशन पे कट किया एंडोन्यूक्लियस ने, इको R1 ने। 675। हाँ हाँ, बताओ कौन से 2 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। 1544 में 675 फ्रेगमेंट पे कट कर रहा है, तो एक फ्रेगमेंट इधर जाएगा, एक फ्रेगमेंट उधर जाएगा, कितने मिलेंगे बताओ। बताएंगे कैसे करेंगे कैलकुलेशन, बताएंगे। ये आपका 1544 न्यूक्लियोटाइड्स है, राइट। इसका कौन से पोजीशन पे कट हो रहा है, कौन से पोजीशन पे हो रहा है, 675 पे, राइट। 675 पोजीशन पे कट हो रहा है, तो इसको माइनस कर दीजिए इसमें से 1544 माइनस, हाँ हाँ 869, और बचा हुआ कितना फ्रेगमेंट का, वेरी गुड। एक रहेगा 869 का और एक रहेगा 675 का, यानी जेल जब आएगी ना, अभी आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप जब करोगे उसका, उस एम्पलीफॉर्म का, तो एक फ्रैगमेंट कितने का मिलेगा, हाँ तो 675 नीचे मिलेगा कि ऊपर, कौन सा 869 वाला, 675 वाला ऊपर मिलेगा पक्का, जेल इलेक्ट्रो, हाँ कहाँ मिलेगा बताओ, 675 वाला कहाँ मिलेगा और 869 वाला कहाँ मिलेगा, कौन सा बताइए। 869 वाला हाँ 869 वाला ऊपर मिलेगा और 675 वाला नीचे मिलेगा। समझा क्या आपको ये स्टडी। हाँ, इसमें हमने पहले क्या किया, ये मार्कर है एक्चुअली, ये क्या है, ये मार्कर है, पीसीआर का मार्कर, यानी हमने एम्प्लीकॉन के अंदर भी डाइजेशन करके उसको कंफर्म कर दिया कि अब ये ऐसा होने वाला है, और ये हमेशा ऐसा ही होगा। फिर आपने अगर वो मार्कर, वो पोजीशन सही में एम्प्लीकॉन एम्पलीफाई की हुई है और डाइजेशन किया, तो आपको हमेशा 869 और 675 पे ही बैंड मिलेगा, इसलिए इसको कहा जाता है मार्कर पीसीआर। समझा क्या। क्योंकि क्या है ना, एम्प्लीकॉन गलत हो सकता है,
है ना। अभी एम्प्लीकॉन गलत हो सकता है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए ये 10 के 10 बैंड कितने न्यूक्लियोटाइड के, कितने न्यूक्लियोटाइड के, 10 के, 1000। हाँ 10 1500, यानी ये जो बैंड बना, ये बैंड एक डीएनए का है या मिक्सचर है, एक ही टाइप का डीएनए है इसके अंदर के मिक्सचर है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो 15वें पोजीशन 15,000 न्यूक्लियोटाइड की जगह जाके स्पेसिफिक पोजीशन ले लिया ना उसने, समझ रहा है क्या सबको। पर ये 1500वीं पोजीशन पे इतने सारे हैं आए ना सब, ये कौन है, ये सब अलग अलग है ना, यस। समझ रहा है क्या। पर इनके अंदर से भी मुझे इसको ढूंढना है, किसको, 9817 को। तो मैं क्या करूंगा, कौन सा इंडोन्यूक्लियस लगाऊंगा, इको R1। इको R1 जैसी लगाऊंगा इसके अंदर, ये इसके अंदर जो डीएनए होगा इसका, वो जब फिर से इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगा तो मुझे दो बैंड देगा। कौन से बैंड देगा, समझ रहे हैं क्या, 675 और 869 का। थोड़ा टफ है आई नो, बट इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली ये आपके काम में आ जाएगा, क्योंकि ये ही रियल बायोलॉजी है, ये बहुत एडवांस्ड है। पर ये समझ लो, ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसको रीड आउट करिए अच्छे से, एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस है, आज यही रुकेंगे, किसी को कुछ क्वेश्चंस है। I think there are no questions. So shall we stop? यस। Okay.